A very good evening, students. Myself, Apoorva, and I'm going to teach you numerical analysis on the platform of Mathematics Academy. So, we have already covered 3 lectures. Today is our 4th lecture on the topic of numerical analysis. Maths Academy has started this program named as Rank Booster Program. This is very much useful for all the students who want to give entrance exams of Delhi University, BHU, or any other master's entrance exam which are nearby to come. This topic is actually also very important if you are aspirant of CSI NET JRF, or you want to give or you want to appear for GATE exam. So there are multiple entrance exams which have this topic included, a numerical analysis. And let me tell you, this topic is very easy. It is not at all difficult. ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से इफ यू रीड इट, इफ यू लर्न इट, आपको ऐसे लगता है कि फ्री के ही मार्क्स हमें मिल रहे हैं. बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटली ऑन फॉर्मूला बेस्ड आपसे पूछा जाता है, वेरी स्टेट अवे क्वेश्चंस. इसीलिए वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक. बहुत लोग ये टॉपिक पढ़ के नहीं जाते हैं बिकॉज इट सीम्स वास्ट, समटाइम्स इट सीम्स कंफ्यूजिंग कि कौन सा फॉर्मूला किस में होगा, कैसे क्या होगा, ये चीजें होती हैं. तो उसी के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ताकि आप जो टॉपिक है वो बेटर वे में पढ़ पाए. ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पे जाते हैं. Very good evening, Vipin Kashyap. A very good evening, Ashish Gupta. So we are ready for the class, I hope. Please do share this class to your students, to your other mates, batchmates, friends, anybody who want to learn about numerical analysis. And let us start the class. अभी देखिए 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं. उसके अंदर हमने देखा है कि कैसे using numerical methods we solve system of linear equation, we solve non-linear equation, how do we solve a integral using numerical methods. Today our main focus would be on how to solve a differential equation and ODE using numerical methods, or a IVP, initial value problem, जहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होती है और आपको इनिशियल कंडीशंस जहां पे गिवन रहती हैं. तो हाउ टू सॉल्व दैट इक्वेशन यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स. ऑल राइट, सो शैल वी स्टार्ट द क्लास. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन which says if Euler's method is used to solve the initial value problem. तो यहां पे आपको क्या बोला गया है, यू हैव एन आईवीपी प्रॉब्लम, you have an IVP problem, initial value problem. Using Euler's method, you have to solve this. You have given an equation y derivative is equals to minus 2ty square. Also, you have provided an initial condition y of 0 equals to 1. Numerically, with the step size h equals to 0.2, the approximate value of y or 0.6 would be क्या होगी. अब देखिए आपको क्या बोला गया है, यूलर्स मेथड आपको लगाना है. यूलर्स मेथड किसके लिए यूज होता है, यहां से समझ आया, किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको यूज होता है. तो व्हाट इज यूलर्स मेथड? If you have a differential equation, Euler's method is for your to solve IVP kind of problem. Let's say you have a differential equation y dash is equals to f of x comma y with initial conditions y of x naught is equals to y naught. This is an equation you are given. Then the method says, or the formula says, that yn plus 1 is equals to y naught plus h into f of
xn comma yn. This is your yn. This is your Euler's method. How did we derive this? By Taylor's series method. हमने ये फॉर्मूला डराइव किया है कि y ऑफ n प्लस वन पे जब आप टर्म निकालोगे, सी आपको y नॉट गिवन है, अगर आप y1 निकालोगे, ये फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आप y1 निकालोगे तो व्हाट वुड बी द फॉर्मूला, यू हैव टू यूज द वैल्यू y नॉट विच इज ऑलरेडी गिवन प्लस h इज योर स्टेप साइज मतलब टू कॉन्जिक्यूटिव x की वैल्यूज में कितना डिफरेंस होगा, डेट इज योर स्टेप साइज. f, व्हाट इज फंक्शन, f is a function of x and y, where fxy is nothing but y derivative. तो y derivative के right hand side में जो value है that is your function of x and y. तो यहाँ पे अगर y1 निकालोगे तो x naught and y naught you have to put, which are given. These initial conditions are given. So this is very basic. Euler's method, it is kind of a iterative method. Very basic to solve a Euler's method. So इसी में आपको क्वेश्चन गिवन है that y derivative is equals to minus 2t y square, यानी यहाँ पे independent variable क्या है, t, instead of x it is t, and the initial conditions are given as y of 0 equals to 1. यानी if I'll talk about values of x and y, they have given you x naught as 0, y naught as 1. Also, the step size h is given to 0.2. That means if x naught is 0, then x1 क्या होगा, x naught plus h, that is 0.2. All right. x2 क्या होगा, x1 plus h, that is 0.4. And x3 क्या होगा, x2 plus h, that is 0.6. हमने 0.6 तक क्यों निकाला है, because in question they have asked you to evaluate the value of y of 0.6. क्या पूछा आपसे, y of 0.6, यानी y at x3 they have asked you, ये आपसे पूछा है. तो यानी ये x आप निकाल लोगे given the step size, तो आपसे ये वैल्यू पूछी है, दिस वैल्यू दे हैव आस्क्ड यू. y नोट पता है, y थर्ड पूछी है, तो उसके लिए पहले आपको इन बिटवीन टर्म्स भी निकालनी पड़ेगी, यानी y1 और y2 भी निकालना पड़ेगा, तभी आप y3 तक रीच कर पाओगे. तो फॉर्मूला हमारे पास है, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फॉर्मूले में अब देखिए फंक्शन, फॉर्मूला क्या कहता है, y ऑफ n प्लस वन इज yn प्लस h इंटू फंक्शन क्या है, दिस फॉर्म का, डेट इज -2 इंटू tn. अच्छा मैंने हर जगह x ले लिया, तो लेट अस टेक दिस एज x ओनली. इसको मैं x लिख सकती हूँ, 2xy square, 2ty square. I just replace the independent variable. It is nothing but same only. So yn plus h फंक्शन क्या है, -2 xn yn square. ये आपका फॉर्मूला बनेगा. नाउ फाइंड आउट y1. y1 वुड बी y नॉट प्लस, और लेट्स से I'll take -2 outside, -2h x naught into y naught square. एवरीबडी फॉलोइंग दिस, किसी को कोई इश्यू आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन प्लीज लेट मी नो. अरे कैसे नहीं हुआ ग्रुप थ्योरी का क्लास, आज हुआ है क्लास 3 PM पे, शार्प 3 PM पे क्लास हुई है. हद हो गई. आपने अगर मिस कर दी है देन गो ऑन द मैथ्स एकेडमी चैनल एंड यू कैन वॉच इट. आज लेक्चर 3 हुआ है. ऑल राइट. सो यहां तक सबको समझ आ रहा है कि हम कैसे फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं. एवरीबडी इज फॉलोइंग दिस. y नॉट की वैल्यू क्या है, 1. दिस इज योर y नॉट. इफ आई सी, दिस इज योर x नॉट, दिस इज y नॉट, दिस इज x1, x2, x3.
और यहाँ जो वैल्यू निकलेगी डेट वुड बी y1, y2, y3. तो y0 की वैल्यू इज 1 माइनस 2 into what is h is your step size, that is 0.2 into x0 is 0 into y0 का square, that is 1 square, but this is 0, so this whole term becomes 0. y1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, y1 has happened to be 1, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 1. और हमें निकालना y3 है, तो y2 देखेंगे, y2 would be y1 plus h, actually minus 2h into x1 into y1 square. y1 अभी निकाला 1 minus 2 into h is step size is your 0.2 into what is x1? You can see x1 is your 0.2. So x1 is your 0.2 into y1 square, that is 1 का square. Evaluate this and this will become 0.92. तो ये आ गई आपके पास y2. y2 यानी y of 0.4. y1 was y of 0.2. Now you have to evaluate y of 0.6, that is y3. That would be y2 minus 2 into h x2 into y2 square. All right. Substitute the values. y2 is 0.92 minus 2 into step size is your 0.2. x2 would be 0.4 into y2 square, that is 0.92 into 0.92. Evaluate this and this will be 0.7845. This would be 0.7845. All right. समझ आया सबको? तो let us see, is this given into your option? Yeah, very first आपको ही इसमें given है 0.7845. तो first option is your correct one. तो ध्यान रखना है, यूलर्स मेथड जो है वो एक आईवीपी को सॉल्व करता है, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है, टू बी वेरी प्रिसाइज, यूज जहां पे आपको एक इनिशियल कंडीशंस गिवन होती है, यानी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हम जिसे बोलते हैं. ठीक है, यूलर्स मेथड किसको सॉल्व करता है? एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स. तो देखिए यहां पे आपने कहीं भी आपने dy by dx इक्वल्स टू माइनस 2xy स्क्वायर, अगर आपको मैं जनरली पूछती तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते? डिपेंडेंट वेरिएबल स्क्वायर में है, कैसे सॉल्व करते आप इसको? इसको वेरिएबल सेपरेबल करते हैं एंड देन you would have integrated. So that is the method जो हम कन्वेंशनल मेथड है जैसे हम यूज करते हैं, बट दिस इज योर न्यूमेरिकल मेथड. विदाउट इंटीग्रेटिंग you are solving using our numerical method, and one such method is your Euler method. There are various methods to solve a differential equation under numerical analysis. Got this? All right, moving on. What does this question says? This says which is the modified Euler's method in the following for the differential equation. Yani they just asked you the formula of modified Euler method. तो देखिए अभी हमने पढ़ लिया यूलर्स मेथड क्या होता है ना, तो उसको बेटर भी किया जा सकता है. यूलर मेथड ने क्या कहा कि भाई अगर y1 आप निकाल रहे हो यूलर्स मेथड कहता है कि y1 अगर आप निकाल रहे हो तो y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0. दिस इज इट.
ये y1 की वैल्यू निकल जाएगी. नाउ व्हाट इफ आई वांट टू रिफाइन दिस वैल्यू y1, because ultimately numerical methods gives you approximate answer. So this y1 value given x0 y0, x0 y0 आपको इनिशियली गिवन होते हैं, तो ये जो y1 वैल्यू आपने निकाली है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. और अगर इसमें एरर है तो जब आप y2 निकालोगे इसको यूज करके तो फर्दर एरर हो जाएगी, है ना. तो व्हाट इफ आई वांट टू रिफाइन इट मोर, कि ये y1 की वैल्यू निकल तो गई बट आई वांट टू रिफाइन इट मोर, देन कम्स द मॉडिफाइड यूलर्स मेथड. हियर कम्स योर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड विच सेज कि यहां से y1 का सिर्फ इनिशियल निकला है, एक इनिशियल अप्रोक्सीमेट किया है आपने. इसी अप्रोक्सीमेशन को y1 का इनिशियल अप्रोक्सीमेशन यानी जीरो अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट इटरेशन जो आप कहते हो जिसे, वो इनिशियली हुई है. फर्दर आप इसे रिफाइन करोगे और फिर से y1 की वैल्यू निकालोगे. हाउ विल यू फाइंड इट आउट? इसी फॉर्मूले में यूजिंग y0 एज इट इज प्लस h/2 यानी स्टेप साइज फंक्शन f ऑफ x0, y0 प्लस f ऑफ, यहां ध्यान दीजिए अब हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे x1, क्योंकि हम y1 निकाल लिया है, y1 निकाल रहे तो x1 की वैल्यू यूज करेंगे और y1 की वैल्यू हम जो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेट कर चुके हैं वो यूज करेंगे, y1 और नॉट. दिस इज योर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड. समझ आई ये चीज? यानी इन जनरल इफ आई से अगर ये तो हो गई y1 की बात, जब आप x0 y0 गिवन है तो आपकी y1 की हो गई बात. अगर मैं जर्नलाइज करूं इसे तो यानी जब जब मुझे yn प्लस वनथ निकालना है तो सबसे पहले मैं yn प्लस वनथ की जीरो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालूंगी, जो कि होगी yn प्लस h इंटू एफ ऑफ xn कॉमा yn. उसके बाद इसको मैं इटरेट कर सकती हूं और कितनी भी, इसके बाद मैं इसको इटरेट कर सकती हूं और जैसे इसमें y1 ऑफ 1 निकल गया, सिमिलरली y1 ऑफ 2 निकल जाएगा. वहां क्या यूज हो जाएगा, ये यहां तक एज इट इज रहेगा, ये वाली जो लास्ट वैल्यू है ये यहाँ पे y1 ऑफ 0 की जगह जो भी आपको प्रीवियस इटरेशन होगी वो यूज होगी. यानी अगर मैं यहाँ पे yn प्लस वनथ ऑफ k प्लस वनथ इटरेशन निकालूं, yn प्लस 1 के लिए k प्लस वनथ अप्रोक्सीमेशन में निकालूं, तो ये तो yn यूज होगा प्लस h/2. ये yn कौन सा, प्रीवियस वाला ना, k वाला, प्लस h/2. yn कौन सा यूज हुआ, इससे पहले वाली इटरेशन का जो k निकल के आएगा. f ऑफ xn कॉमा yn प्लस f ऑफ xn प्लस 1 yn प्लस 1 एट kth. सो दिस इज योर जनरलाइज्ड फॉर्मूला और यही फॉर्मूला आपसे पूछा गया है. आई होप एवरीबडी मेड इट क्लियर. नाउ टेल मी, कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा, ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा. देखिए और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा. सी यहाँ पे दो दो फॉर्मूलाज दिए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. एक ये फॉर्मूला है और एक ये है, दो ही तो आएंगे मॉडिफाइड यूलर मेथड के लिए, एक फर्स्ट एंड देन सेकंड. यू हैव गिवन टू फॉर्मूलाज, चेक एंड लेट मी नो कि क्या आंसर बन रहा है. अभी बताया मैंने, अभी आपको समझाया है. अगर समझ आ गया होगा तो आप इसमें से देख के बताइए ABCD में से कौन सा आंसर आएगा.
I can't see anybody's answer. Please comment in the box. कौन सा आंसर निकल के आएगा? बताइए. मॉडिफाइड यूलर मेथड आपसे अभी बताया गया है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगी. y1 ऑफ नॉट वुड बी y नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट. आप देखो इन चारों में इनिशियल वैल्यू तो सबने सेम ही है इनकी. इधर उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा? वेरी नाइस. शिवु त्यागी, मनीष प्रजापति एंड द फनी गाय, सबने ए ऑप्शन दिया है. बिकॉज y1 ये है तो y1 का ही n प्लस वन क्या आएगा? y नॉट प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट. x1 यूज होगा और y1 की अनथ इटरेशन. तो योर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी y1 की अनथ इटरेशन नहीं लिखा है. थर्ड में क्या इश्यू है? यहाँ माइनस साइन है. फोर्थ में यहां माइनस साइन है. तो जो बेस्ट आंसर है और जो करेक्ट आंसर है डेट इज योर ए. नो, अनुपम यादव एंड इराम सिद्दीकी हैज गिवन मी आंसर एज बी, बट बी इज नॉट द करेक्ट आंसर. लुक केयरफुली, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज बी में यहाँ पे एफ ऑफ x1 कॉमा y1 तो आपको वैल्यू अभी पता ही नहीं, आप इटरेशन कर रहे हो. y1 नॉट तो निकाल लिया आपने और y1 n प्लस वन निकाल रहे हो तो आपने प्रीवियसली कौन सी निकाली होगी? y1 nth, वो यूज करनी है. ऑल राइट, इट्स ऑल राइट. मूविंग ऑन. किसी को अगर इशू है बता सकते हैं. कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेट मी नो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस सेज द वैल्यू ऑफ y of 0.2 obtained by solving the equation by modified Euler's method. तो पहला क्वेश्चन हमने यूलर मेथड से किया था, फिर हमने देखा मॉडिफाइड यूलर मेथड क्या होता है. अब ये क्वेश्चन आ गया मॉडिफाइड यूलर मेथड का. तो आपके पास फॉर्मूला गिवन है, अभी अभी लिखा है आपने, लिखा है ना नोटबुक में. हाँ, क्योंकि अब मैं बताऊंगी नहीं और ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे. अमित इज सेइंग कि टेलीग्राम पे लाइव क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो वो तो यूट्यूब चैनल पे मिलेगी ना. यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन को रिंग करो और आपको मिल जाएगी. चलो टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे. 2 टाइम नहीं याद रख सकते, 3 बजे 6 बजे क्लास होती है, रोज होती है. हम कोई चेंज थोड़ा ना कर रहे हैं टाइम. मेहनत नहीं करना चाहता कोई भी. आज सुबह मुझे कोई कह रहा था कि ये ना नोट्स लिखवा दिया करो, थ्योरी लिखवाया करो. बताओ, सब तो लिख दे रही हूँ, कुछ बोल देती हूँ. बना लो यार, थोड़े से अपना पेन हाथ चला लो. अभी ये कह रहे हैं कि मैडम नोटिफिकेशन दे दिया करो, फोन वोन करवा दें आपके घर कि जी हम आ रहे हैं, थोड़ा पढ़ाएंगे, कष्ट कर लो, थोड़ा पढ़ लो. जाग जाओ खुद से. ठीक है, टेलीग्राम पे डेली होता है. अच्छा, किसी ने बोला है कि होता है डेली अपडेट, देख लो. इन्हें तोमर जी, इन्हें अमित जी को बता दीजिए कौन सा चैनल है और कहाँ सब्सक्राइब करना है और कैसे ढूंढना है. Anyways, everybody, tell me the answer here. Who is going to tell me? अभी अभी मॉडिफाइड यूलर्स मेथड आपको करवाया है, उसी फॉर्मूला को यूज करके ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. क्या गिवन है आपको? यू हैव गिवन dy by dx
is equals to log of x plus y. That means this is your function. Also y naught is equals to 1. That means x naught is 0 and y naught is 1. Right? What you have to find out? You have to find the value of y of 0.2. अब एक चीज देखिए, यहां पे आपको h नहीं गिवन है, h आपको नहीं गिवन है. स्टेप साइज कितनी लेनी है अब आपकी मर्जी है. ये देखो, ये x, ये y, ये 0 गिवन है, ये 1. पूछा है 0.2 पे, तो या तो आप सीधा 0.2 पे निकाल दो मॉडिफाइड यूलर मेथड यूज करके, ठीक है, या आप स्टेप साइज, यहाँ पे स्टेप साइज क्या लोगे 0.2. चाहो तो आप स्टेप साइज 0.1 ले सकते हो. तो पहले आपको 0.1 के लिए y1 निकालना पड़ेगा यूजिंग मॉडिफाइड यूलर मेथड, फिर आपको 0.2 पे निकालना पड़ेगा. सो बिकॉज दे हैव नॉट गिवन यू द स्टेप साइज, तो इट्स ऑन योर डिस्क्रिप्शन कि आपको क्या चूज करना है. ठीक है, वैल्यूज में अगर हम देखें तो थोड़ा सा अंतर आएगा. 0.1 पे लेके सॉल्व करोगे या 0.2 स्टेप साइज पे सॉल्व करोगे, लेकिन आंसर्स में ऑलरेडी काफी ज्यादा अंतर दे रखा है अगर आप देखेंगे तो. यानी आप आंसर चाहे 0.1 से निकालो या 0.2 से निकालो, इनमें से तो एक ऑप्शन निकाल ही लोगे. समझ आई ये चीज? जब स्टेप साइज नहीं गिवन है तो इधर आप स्टेप साइज 0.1 लो तो आपको दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी. पहले 0.1 पे y1, फिर 0.2 पे y2 निकलेगा. ठीक है, और 0.1 पे भी जब निकालोगे तो भी मॉडिफाइड यूलर मेथड निकालना है. यानी पहले आप y1 और नॉट निकालोगे, फिर y1 पे 1 निकालोगे, y1 पे 2 निकालोगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेट उसे आंसर करने की कोशिश करोगे. तो हम कैलकुलेशन कम करने के लिए h लेंगे 0.2. हम ज्यादा क्यों लें? एंट्रेंस एग्जाम है, वैसे भी काम टाइम लिमिट होती है, तो हम यहां लेंगे. जो लोग कर रहे हैं वो फटाफट करके आंसर बता दें, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें करना चाहिए था. नहीं कर रहे हो तो इधर देख लो. h क्या है 0.2. फंक्शन क्या है log ऑफ x प्लस वाई, और क्या है y नॉट इज, ये सब है हम पे. तो यानी हम अगर h 0.2 है तो y1 ही निकालना है. y1 और नॉट कैसे निकलेगा? y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट कोमा y नॉट. y नॉट कितना है? ये है y नॉट 1. 1 प्लस h इज 0.2 इंटू फंक्शन कितना है log, तो log ऑफ x नॉट डेट इज 0 प्लस 1. log 1 0, ये वैल्यू बन गई 0, तो ये आ गया 1. तो y1 नॉट कितना आ गया 1. अब y1 की फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी? y1 की 0 वैल्यू प्लस h, यहां निकलेगी y नॉट प्लस h बाई 2 f ऑफ x नॉट कोमा y नॉट प्लस f ऑफ x1 कोमा y नॉट 1. ये फॉर्मूला लगेगा, वैल्यू पुट करो. किसी ने भी आंसर नहीं दिया, कोई नहीं कर रहा. दिस इज इक्वल्स टू y नॉट कितना है 1, h कितना है 0.2 बाई 2. फंक्शन log ऑफ 0 प्लस 1, दिस विल बिकम 0, प्लस log ऑफ x1 कितना बन गया 0.2
प्लस वाई नॉट ऑफ 1 इज कितना है 1. इवेल्युएट दिस, और हमारी कैलकुलेशन में ये वैल्यू आती है इतनी. किया है किसी ने कैलकुलेट? ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1.0079. क्यों? क्योंकि आपने h लिया, स्टेप साइज यहाँ पे 0.2. अगर आप स्टेप साइज लोगे 0.1 में तो और रिफाइंड आंसर आएगा, है ना. जितनी छोटी छोटी स्टेप साइज पे आप वैल्यू निकालोगे, जैसे मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे डाटा ही तो कलेक्ट कर रहे हो आप. अब डाटा कलेक्ट किया आपने, एक तो वैल्यू पता है आपको x पे 0 पे, और एक आप निकाल रहे हो फिर सीधा 0.2 पे. ये पता है यहाँ है, मान लो ये यहाँ पर पता है, तो 2 पॉइंट से आप कम एनालाइज कर पाओगे. एक आपको पता है 0 पे, फिर 0.1 पे, फिर 0.2 पे, तो ये आपको बेटर आंसर दे पाएगा. लेकिन आंसर कितना है 1.0079, जो कि यहाँ पे सबसे बेस्ट अप्रोक्सीमेट किसके है, बी के. अगर आप h को 0.1 लेके करोगे तो यही आ जाएगा. ठीक है, यानी पहले h 0.1 पे y1 निकाल दो, फिर y2 निकाल दो. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, बी 1.0082. ये चीज सबको समझ आई? ये चीज सबको समझ आ गई ना कि कैसे किया है ये हमने? तो अभी तक हमने 2 मेथड पढ़ लिए टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इन पर्टिकुलर टू सॉल्व अ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम using numerical methods. One is your Euler's method, another one is modified Euler's method. And let me tell you, this modified Euler's method is also known as Runge-Kutta method of order 2. This is also known as Runge-Kutta method of order 2. Anupam said कि yes, answer matched. I guess he has done using 0.1. So modified Euler method क्या होता है? It is also known as Runge-Kutta method of order 2. ये थे हमारे क्वेश्चंस, आगे भी करवाएंगे. उससे पहले हम बता देते, वी हैव अ वेद प्रेप ऐप जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. यू कैन गो एंड डाउनलोड आवर ऐप. वी हैव वेद प्रेप मैथ्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल. जिनको नहीं पता है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जहां पे आपको डेली नोटिफिकेशंस भेजी जाती हैं, क्लास कब होती है, क्लास कब नहीं होती है, जो पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ भेजा जाता है, असाइनमेंट आपको भेजा जाता है. तो अपडेट रहिए, अपने आप को रखिए. यूट्यूब पे भी थोड़ा सा देख लीजिए, और याद रख लो यार कि 3 बजे 6 बजे क्लास है, 4:30 बजे भी बीच में क्लास होती है. लीनियर सर पढ़ाते हैं, तो ये क्लासेस याद रख लो और ले लो. विपिन ऑल्सो सेड बी गुड. किसी ने तो किया, 2 लोगों ने किया. ठीक है, एंड शेयर दीज लिंक्स. अगर आपको ये समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ा हुआ, तो भेज दो किसी को जो पढ़ ले न्यूमेरिकल एनालिसिस. अकेले अकेले पढ़ के क्या करोगे, बता दो किसी को. Moving on to the next question, and this says the backward Euler method for solving the differential equation y dash is equals to f of x comma y is. तो आपने यूलर मेथड देख लिया, मॉडिफाइड यूलर मेथड भी देख लिया. नाउ इज वन अनदर मेथड दैट इज नोन एज बैकवर्ड यूलर मेथड, और जिसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट यूलर मेथड. नाउ आई गेस कि आपको ये सबको पता होगा कि द टर्म इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंशिएशन है. ये पता है एक इम्प्लिसिट इक्वेशन किसे कहते हैं, एक्सप्लिसिट इक्वेशन किसे कहते हैं, या इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन. नहीं पता है तो सुन लो. एक्सप्लिसिट क्या होता है?
कि भाई आपको एक्सप्लिसिटली मतलब स्टेट अवे बता रखा है कि ये ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, यानी अगर डेरिवेटिव इक्वेशन है तो y डैश एक साइड होगा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड होगा, यानी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये है आपकी एक्सप्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वहीं पे इम्प्लिसिट इक्वेशन अगर मैं बात करती तो ये होती इस प्रकार की, फंक्शन ऑफ x y डैश इक्वल्स टू 0, ये होती। तो ये होती आपकी इम्प्लिसिट। व्हाट डज दिस मीन्स कि y डैश इक्वल टू नहीं दे रखा, y डैश के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन इस तरीके की हो सकती थी, x इंटू वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश इंटू वाई, इस तरीके का कुछ दे रखा होता है। तो ये तो क्या हो गई आपकी इम्प्लिसिट, कि आपको अंदर दे रखा है वाई डैश की वैल्यू, बाहर नहीं है। यहां वाई डैश अलग से दे रखा है। एग्जाम्पल वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई डैश एक साइड है, बाकी दूसरी साइड है। तो ये समझ आया कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट किसे कहते हैं। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हर चीज को आप हर इक्वेशन को इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं। अगर सिंपल एक अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो ये हो जाती है एक्सप्लिसिट इक्वेशन, लेकिन अगर वहीं पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 है तो ये हो गई आपकी इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो मैंने क्या बताया आपको कि बैकवर्ड यूलर मेथड इज नथिंग बट इम्प्लिसिट मेथड, इम्प्लिसिट यूलर मेथड। तो अभी हमने देखा कि अगर yn प्लस 1 आपको निकालना है तो ये हो जाएगा yn प्लस h एफ ऑफ एक्स एन कोमा वाई एन। ये तो था आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम यूलर्स मेथड पढ़ते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड यूलर्स मेथड। ऑल राइट, अगर बैकवर्ड की बात करूं मैं, उसमें क्या होता है y ऑफ n प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू yn प्लस h एफ ऑफ, अब ध्यान देंगे यहां पे मैंने क्या लिखा है xn प्लस 1 कोमा yn प्लस 1। yn प्लस 1 निकालना था आपको, है ना, yn प्लस 1 निकालना था, और फंक्शन की वैल्यू में आपने क्या पुट किया है yn प्लस 1 ही, यानी yn प्लस 1 इधर भी है, yn प्लस 1 इधर भी हो जाएगा। तो जब यहां वैल्यू पुट करोगे फिर आपको उसे रीअरेंज करना पड़ेगा और एक साइड लेके आना पड़ेगा जो निकालना है। तो क्योंकि ये रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें yn प्लस 1 इधर भी है और इधर भी है, इसलिए हम इसे इम्प्लिसिट यूलर मेथड भी बुलाते हैं, इसलिए हम इसे इम्प्लिसिट यूलर मेथड भी बुलाते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग a differential equation using backward Euler method or implicit method। तो यहां पे बताइए मुझे कौन सी होगी, टेल मी द ऑप्शंस फटाफट, ए बी सी डी में से फटाफट बताइए। इतना टाइम नहीं लेना है, अभी समझाया आपको, तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। Okay, the funny guy has given the answer as B. Vipin Kashyap also has given the answer as B. Who else? देखिए अगर आप क्लास ले ही रहे हो, आ ही गए हो, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। एक्टिव रहोगे, दिमाग खुला रहेगा, चीजें अच्छे से समझ आएगी। ऐसे मुंह उतार के बैठे रहोगे, कॉपी पेन लेके बस लिखते रहोगे तो कुछ नहीं जाएगा। तो एक्टिव होना पड़ेगा आपको।
Iram Siddiqui again said B. Good. So the answer is B. देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है. फर्स्ट वाला तो आपका जो जनरल स्टैंडर्ड यूलर मेथड होता है वो है. सी में क्या इशू है, यहाँ n-1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, ये n+1 भी नहीं दिया, तो पूरा ही गलत दे दिया, कुछ भी सही नहीं है इसमें. टी में भी 1+h क्या दे रहे हैं, ये गलत है. बी इज द ओनली करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सभी सॉल्व करेंगे. ये क्या कहता है, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 सच दैट f of 0 is 1, f1 is 3, f3 is 55. यानी आपके पास 3 पॉइंट डाटा पॉइंट दे रखा है, यू हैव टू इंटरपोलेट अ पॉलिनोमियल आउट ऑफ इट. अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लैग्रेंज पॉलिनोमियल पढ़ाया था इनिशियल क्लास में, अगर या येस्टरडे की क्लास में, कि लैग्रेंज पॉलिनोमियल यूजिंग डाटा आप कैसे एक पॉलिनोमियल जनरेट करते हैं. सबको याद है लैग्रेंज पॉलिनोमियल. यू हैव गिवन अ सेट डाटा ऑफ 3 डाटा पॉइंट्स. आपके पास 3 डाटा पॉइंट गिवन है, f01 यानी आपके पास है x और fx की वैल्यू 0, 1. Then they have given you 1, 3 and 355. All right. So can you solve this equation? Can you solve this given data? और आपको क्या करना है, एक पॉलिनोमियल जनरेट करना है ऑफ डिग्री 2, यानी P2x यूजिंग लैग्रांजेस कैसे होगा, समेशन Li इंटू f ऑफ xi. i's go from 0 to 1 क्योंकि P2 निकाल रहे हैं, डेट इज L0 f0 प्लस L1 f1. ठीक है. वेर योर Li's कैसे दिए जाते हैं, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस xi माइनस 1, ये फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए आपको. बार बार लिखोगे नोटबुक में तो याद होंगे, वरना तो नहीं होंगे, फिर भूल जाओगे. प्रैक्टिस में आ जाता है फिर. xi माइनस एक्स नोट, xi माइनस ठीक है. ये फॉर्मूला समझ आया सबको. तो दिस इज योर फॉर्मूला. 3 डाटा पॉइंट्स गिवन है, इस फॉर्मूला में पुट करके आई होप यू गाइस कैन फॉर्मुलेट अ पॉलिनोमियल. बना लोगे ये पॉलिनोमियल. कल भी करवाया था ऐसा ही कोई क्वेश्चन, तो इट्स द सेम. ठीक है. Shall I move forward to the next question? And this is your Runge-Kutta method. Finally, let y be the solution of the IVP using Runge-Kutta method, second order method with step size as h equals to 0.1. The approximate value of y of 0.1 correct to 4 decimal places is given by.
तो आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, y माइनस एक्स, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0, y नॉट की वैल्यू कितनी है 2, स्टेप साइज कितनी है 0.1, ये सब गिवन है। और पूछा क्या है, y ऑफ 0.1 ही पूछा है, 0.1 ही स्टेप साइज है, y ऑफ 0.1 पूछा है, यानी y1 की वैल्यू पूछी है। और रंगे कुटा सेकेंड ऑर्डर मेथड इज नथिंग बट सेम एज मॉडिफाइड यूलर मेथड, और एल्स इफ यू वांट कि मैं उसको एक्सप्लिसिटली एक फॉर्म में लिखूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रंगे कुटा मेथड को, योर रंगे कुटा seems like a South Indian movie star named Range Kutta. Second order method. ठीक है, ये क्या कहता है कि भाई अगर yn प्लस वन अप्रोक्सीमेशन करनी है तो दो चीजों से होगी, yn प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस k2, जहां पे आपकी k1 इज नथिंग बट h इंटू एफ ऑफ xn कोमा yn, n प्लस वन कर रहे हो तो xn कोमा yn, और k2 अगर कर रहे हो तो h इंटू एफ ऑफ xn प्लस वन या xn प्लस h कह लो या xn प्लस वन कह लो, कोमा yn प्लस ऊपर वाली जो k1 वैल्यू है, या yn प्लस वन ऑफ जीरोथ इटरेशन। तो दिस एंड योर मॉडिफाइड यूलर मेथड इज वन एंड द सेम। क्वेश्चन फिफ्थ के ऑप्शंस रिपीट करने हैं। ऑल राइट, दीज आर दी ऑप्शंस, एक्चुअली आई हैवंट कैलकुलेटेड दिस, तो आप ऑप्शंस लिख लीजिए ए बी सी डी, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, तो आप देख लो ये एंड लेट मी नो इन टुमारोज क्लास। अगर कोई भी इसमें सॉल्यूशन सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो हम इसे कल की क्लास में ले लेंगे, ठीक है। सो यही ऑप्शन है, एक बार राइट डाउन कर लो जो लोग भी इसमें सॉल्व कर रहे हैं ए बी सी डी वैल्यू अपनी। लेट मी नो जब हो जाए। आई कैन सी कि स्टूडेंट्स दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, या तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आपको अच्छा नहीं लग रहा, या समझ नहीं आ रहा, या पढ़ना ही नहीं चाहते हो, क्या ऑप्शन है? अनुपम यादव हैज गिवन द आंसर ऑलरेडी एज सी एज द ऑप्शन। लेट्स सी, आई हैवंट कैलकुलेटेड एज आई टोल्ड यू, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज सिंपल एक्चुअली। ठीक है, लिख लिए ऑप्शंस, लिख लिए सबने जिनको लिखने हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे रंगे कुट्टा मेथड, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, लेट्स सॉल्व दिस रंगे कुट्टा मेथड। कैसे सॉल्व होगा? ये फॉर्मूला निकाला हमने, अब इस फॉर्मूला में यही पुट कर ले। तो देखिए यहां से नया ही बना लेते हैं, y1 हमें निकालना है। तो अगर हम बात करें y1 कैसे निकलेगा, y0 प्लस हाफ ऑफ k1 प्लस k2, where your k1 is
h into f of x naught comma y naught. K2 is h into f of x1 comma y naught plus K2. ये फॉर्मूला बना है. नाउ somebody saying कि रिंग थ्योरी पढ़ाओ. रिंग थ्योरी पूरी प्लीज. पूरी क्या होता है? ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? न्यूमेरिकल पढ़ा रही हूँ, न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं. जिस दिन रिंग पढ़ाऊंगी फिर बोलोगे ऑडी पढ़ाओ प्लीज. जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो. रिंग पे भी आएंगे धीरे धीरे. ग्रुप पढ़ा रहे हैं ना 3 बजे, वो करके रिंग भी पढ़ा देंगे. सब पढ़ा दें एक साथ. न्यूमेरिकल पढ़ लो. ग्रुप रिंग तो पढ़ते ही रहते हो, सालों से वही पढ़ रहे होगे. आसान है ये टॉपिक, क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं. चौथी क्लास है और आधा सिलेबस से ज्यादा तो कवर हो गया है इसमें. मान नहीं रहे, कह रहे कि नहीं प्लीज पढ़ा दो. पढ़ा ही दो, आज ही पढ़ा दो. ठीक है, इस क्लास के बाद रिंग शुरू करेंगे. ठीक है, एक रिंग का भी एक सेशन स्टार्ट कर देते हैं. फिर तुम अकेले आओगे, और लोग नहीं आएंगे. थक जाते क्योंकि 3 क्लास ऑलरेडी होती है यूट्यूब पे. फिर डाटा खत्म हो जाए और फिर तुम लोग न्यूमेरिकल की क्लास में नहीं आए तो फिर मुझे बुरा लगेगा. ये देखो, टाइम पास करवा लो. 7 बज गए, घर जाना है. चलो बताओ, ये सॉल्व करो. x नॉट y नॉट क्या थे वैल्यूज हमारी? x नॉट 0, y नॉट 2 है ना, और 0.1. भाई आगे हो जा. तो x नॉट 0, y नॉट 2, h 0.1 और फंक्शन क्या है? y माइनस एक्स. फंक्शन है आपका y माइनस एक्स. तो पहले k1 निकाल लेते हैं. k1 क्या है? h 0.1 इंटू फंक्शन y नॉट माइनस एक्स नॉट, दैट इज 2 माइनस 0. ये हो गया 0.2. 2 इंटू 0.1. फिर k2 निकाल लेते हैं. ये वैल्यू निकाली नहीं है किसी ने अभी तक? सारे बातें सुन रहे थे ना. k2 इज इक्वल्स टू h यानी 0.1 इंटू फंक्शन में x1 पुट करना है. x नॉट 0 है, x1 कितनी होगी? स्टेप साइज कितनी है? 0.1. तो पर y माइनस एक्स है. y कितना है? y की जगह क्या पुट करना है? y नॉट प्लस k1. y नॉट कितना? 2. 2.2. तो ये हो गया 2.2 माइनस x1 डेट इज 0.1. ठीक है, ये कितना आ गया? जीरो 0.1 इंटू 2.1. ये हो गया 0.21. k1 k2 निकल गया. y1 कितना हो जाएगा फिर? y नॉट यानी 2 प्लस हाफ 0.2 प्लस 0.21. अब ये कैलकुलेट करके बता दो भाई प्लीज. 0.2 प्लस 0.41 डिवाइडेड बाई 2. ये हो गया 2 5 कुछ आ रहा है 205 2.205. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया. हो गया. सो दिस वाज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. अब देखिए ग्रुप थ्योरी का
लेक्चर 4, ग्रुप थ्योरी का लेक्चर 4 है कल 3 बजे। ग्रुप थ्योरी भी हम पढ़ा रहे हैं। अगेन DU, BHU, CSR नेट, गेट, IIT जैम, एनी एंट्रेंस एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग, ग्रुप थ्योरी हर जगह आती है और बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं करी है क्लास तो यू कैन गो टू आवर चैनल मैथ्स एकेडमी। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, वहां जाके चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और फिर कल की क्लास में 3 बजे आ जाना। ऑल्सो इफ यू लाइकिंग द कंटेंट विच मैथ्स एकेडमी इज प्रोवाइडिंग, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बार बार कह रहे हैं बिकॉज दिस इज द ओनली मोटिवेशन विच वी हैव। ठीक है, 0.215 विपिन, आई गेस सेम ही था। ठीक है, और रिंग थ्योरी भी करवाएंगे, थम जाओ। जितना पढ़ा रहे हैं पहले उतना पढ़ लो। ठीक है, आंसर क्या है, ये आए ना आंसर जो आपने कैलकुलेट किया है, देख लेना कैलकुलेशन में यहां ऊपर नीचे हो गया, फॉर्मूला आपको दे दिया है। ऑल राइट, सो हैव अ ग्रेट इवनिंग टू एवरीबडी। थैंक यू एवरीबडी, सी यू टुमारो, टेक केयर।